حضرت علی کی بیعت ہو جانے کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دوسرے صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے علی، ہم نے آپ کی بیعت کے وقت یہ شرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فرمائیں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کا یہ تمام گروہ قتل عثمان میں شریک ہے، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا ہے، اس لیے آپ پر ان سب لوگوں سے قصاص لینا فرض ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، میں تمہاری طرح ان معاملات سے نا واقف نہیں، لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری حاکم بنی ہوئی ہے، اور ہم ان کے حاکم نہیں۔ پھر اس قتل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں، اور وہ تمہارے دوست ہیں، اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں، تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر کچھ قدرت رکھتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، تم جو کچھ دیکھ رہے ہو میں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات بالکل زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں، اور اس قوم میں بھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ کار نہیں۔ لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قسم کے ہیں، ایک طبقہ کی وہی رائے ہے جو تمہاری رائے ہے، اور دوسرے طبقے کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہے، اور ایک فرقہ نہ اس رائے کا حامی ہے نہ اس رائے کا۔ جب تک تمام لوگ ایک رائے پر جمع نہ ہو جائیں اور دل درست نہ ہو جائیں، اور اس وقت تک قصاص ممکن نہیں۔ اب تم میرے پاس سے جاؤ اور یہ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا نئے حالات پیش آتے ہیں، اور ان حالات کا جائزہ لے کر میرے پاس واپس آؤ۔ یہ بات قریش پر بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے مدینہ سے بھاگنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے بنو امیہ مدینہ چھوڑ کر بھاگے اور لوگ متفرق ہو گئے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہاں تک کہنے لگے کہ اگر ان حالات میں اس طرح اضافہ ہوتا رہا اور اس آفت کی یہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جیسا کہ علی نے کہا تھا، اس قصاص کو ترک کرنا پڑے گا۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ جو کام لازم ہے ہمیں خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے، اور اس میں ہرگز بھی تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ علی تو اپنی رائے قائم کر چکے ہیں، اور اس طرح ان کا کام بھی ہمارے کندھوں پر آن پڑا ہے، اور اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علی نے ایک عام خطبہ دیا اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش کی فضیلت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ میں خود قریش کا محتاج ہوں، اور مجھے ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی ہے، اور ان کے بغیر میری زندگی بھی بیکار ہے، اور اس خلافت کے علاوہ میری ان پر کوئی زبردستی نہیں، مجھے اس کا اجر اللہ عز و جل ہی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، جو غلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اعلان سبائیہ فرقوں اور بدوؤں پر بہت گراں گزرا، اور وہ آپس میں کہنے لگے، کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا، اور ہم پھر احتجاج بھی نہ کر سکیں گے، اس لیے اس کا بھی تدارک کر لینا چاہیے۔ سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے یہ تحریر کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بیعت کے تیسرے روز لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، اعراب کو اپنے پاس سے نکال دو، اور فرمایا، اے اعراب، تم اپنے چشموں پر واپس چلے جاؤ۔ اعراب نے حضرت علی کے اس حکم کی اطاعت کی، لیکن سبائیہ فرقے نے انکار کر دیا۔ اس خطبہ کے بعد حضرت علی، طلحہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے دوسرے صحابہ حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی نے ان سے فرمایا، اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کر قتل کر دو۔ صحابہ نے جواب دیا، یہ قاتل تو اس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے ہیں کہ بدوؤں کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم، آج کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ چھا جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اگر میری قوم کے سردار میری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایسی بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے۔ حضرت طلحہ نے گزارش کی کہ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیجیے، میری جانب سے کسی قسم کا خطرہ دل میں نہ لائیے، میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ اس کے بعد حضرت زبیر نے کوفہ جانے کی درخواست کی اور عرض کیا کہ آپ میری جانب سے کوئی بدگمانی نہ کیجیے، میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا۔ حضرت علی نے ان کی درخواست پر یہی فرمایا کہ میں اس پر غور کروں گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جب اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو وہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھ پر آپ کے دو حق ہیں، ایک حق تو اطاعت کا ہے اور دوسرا حق نصیحت کا۔ آج کے روز بہترین مشورہ وہ ہے جس سے آپ کل اور آئندہ پیش آنے والے معاملات سے اپنی حفاظت فرما لیں، اور آج کے ضائع ہو جانے سے آپ ان چیزوں کو بھی ضائع کر دیں گے جو کل حاصل ہو سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ معاویہ اور ابن عامر کو ان کو عہدوں پر قائم رکھیے۔
इसी तरह बाकी गवर्नरों को भी उनके ओहदों पर बरकरार रखिए। जब ये लोग आपकी इताअत कर लें और अफवाज भी आपकी बैत कर लें तो इस वक्त मुनासिब समझें तो इन गवर्नरों को तब्दील कर दें या इन्हें इनको ओहदों पर रहने दें। इस वक्त आपको हर तरह का इख्तियार होगा। हज़रत अली ने फरमाया, मैं इस पर गौर करूँगा। इसके बाद मुगीरा हज़रत अली के पास से चले गए और अगले रोज़ फिर इनके पास वापस आए और कहने लगे, मैंने कल आपको एक मशवरा दिया था, लेकिन बेहतरीन राय ये है कि आप फ़ौरन इन्हें इनके ओहदों से बरतरफ कर दें ताकि हर एक सुनने वाले को इनका हाल मालूम हो जाए और वो आपकी खिलाफत को कबूल कर लें। इसके बाद मुगीरा हज़रत अली के पास से चले गए। मुगीरा जब हज़रत अली के पास से वापस गए तो इब्न अब्बास ने इन्हें जाते हुए देख लिया। वो हज़रत अली के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, मैंने मुगीरा को आपके पास से निकलते देखा है, वो किस लिए आए थे? हज़रत अली ने फरमाया, वो गुज़िश्ता रोज़ भी आए थे और मुझे ये मशवरा दिया था और आज आए तो ये मशवरा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, कल उन्होंने जो आपको मशवरा दिया था वो फ़िल वाक़या खैर ख्वाही पर मबनी था और आज उन्होंने आपको धोखा दिया है। हज़रत अली ने फरमाया, तो फिर आपकी क्या राय है? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, राय तो ये थी कि जिस वक्त हज़रत उस्मान शहीद हुए थे, बल्कि इससे भी पहले ही आप मदीना छोड़कर मक्का चले जाते और वहाँ अपने घर बैठ जाते और घर का दरवाज़ा बंद कर लेते। अहले अरब मजबूर व परेशान होकर आपके पास पहुँचते और आपके अलावा किसी को कोई खिलाफत का अहल नज़र न आता। इस वक्त आपकी खिलाफत पर सबका इत्फाक होता और आप इस तरह मजबूर न होते। जहाँ तक बनु उमैया का ताल्लुक़ है तो वो आपकी खिलाफत की मुखालफत की भरपूर कोशिश करेंगे और लोगों को शुबहात में डालेंगे। वो भी इस कसास का मुतालबा करेंगे जिसका अहले मदीना ने मुतालबा किया है। उनके इरादे पर ना तो आपको कुदरत हासिल होगी और ना वो खुद इस कसास पर कुदरत पा सकेंगे। अगर बिलफ़र्ज़ ये मामलात उन्हीं के सुपुर्द भी कर दिए जाएँ तो वो अपने हुकूक को खुद फना कर देंगे और वो तरीके इख्तियार करेंगे जिनसे ज़्यादा शुबहात पैदा किए जा सकें। और खुदा की कसम यही मुगीरा कल ये कहेंगे कि मैंने अली को नसीहत की थी, लेकिन जब उसने मेरी नसीहत को कबूल नहीं किया तो मैंने उसे धोखा दिया। मुगीरा इस गुफ्तगू के बाद मदीना छोड़कर चले गए। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैंने हज़रत अली से कहा कि पहली मरतबा तो मुगीरा ने आपके साथ भलाई की थी और दूसरी मरतबा आपको धोखा दिया है। हज़रत अली ने फरमाया, तुम मुझे नसीहत न करो। इब्न अब्बास ने कहा, आप जानते हैं कि मुआविया और उनके साथी दुनियादार हैं। अगर आप इनके ओहदों पर इन्हें कायम रखेंगे तो इन्हें इसकी कोई परवाह ना होगी कि खलीफा वक्त कौन है, और अगर आप इन्हें माजूल कर देंगे तो वो ये कहेंगे कि खिलाफत मशवरे के बगैर कायम है और इसी खलीफा ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया है। इस तरह आपकी मुखालफत पर आमादा हो जाएंगे और अहले इराक़ आपके बागी बन जाएंगे। दूसरी जानिब मैं तलहा और ज़ुबैर से भी मुतमिन नहीं हूँ कि कहीं वो आप पर हमला न कर बैठें। हज़रत अली, तुमने जो ये कहा कि मैं इन अहदेदारों को उनके अहदों पर कायम रखूं, तो खुदा की कसम इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि दुनिया की भलाई के लिए यही बेहतरीन तदबीर है। लेकिन जहाँ तक हक़ और इन मामलात का ताल्लुक़ है जिसका उस्मानी अहदेदार मुर्तकिब हो रहे हैं और जिनका मुझे इल्म है, तो ये अमूर मुझे इस पर मजबूर करते हैं कि मैं इनमें से किसी को भी अहदे पर ना बरकरार रखूँ। अगर बरतरफ़ी के बावजूद ये मेरी खिलाफत कबूल कर लें तो ये इनके लिए बेहतर है, और अगर इससे इनहराफ करेंगे तो मैं तलवार निकाल लूँगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, तो मेरी एक और राय तस्लीम कीजिए। आप अपनी ज़मीन पर चले जाइए और अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बैठ जाइए, क्योंकि अरब परेशान और मुज़तरब होने के बाद आप ही के पास आएंगे और आपके अलावा इन्हें कोई ऐसा दूसरा शख्स नज़र ना आएगा जो खिलाफत का बार संभाल सके। और अगर आपने आज इनका साथ देकर मुआविया वगैरह पर लश्कर कशी की तो खुदा की कसम कल तमाम लोग उस्मान के खून की ज़िम्मेदारी आपके सर डालेंगे। हज़रत अली, मैं ये नहीं कर सकता, तुम शाम जाओ, मैं तुम्हें वहाँ का हाकिम बनाता हूँ। इब्न अब्बास, आप मुआविया वहाँ मौजूद हैं जो बनु उमैया के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हज़रत उस्मान के चचाज़ाद भाई हैं। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वो उस्मान के खून के कसास में मेरी गर्दन उतार लेंगे, और अगर ऐसा ना भी करेंगे तो कम अज़ कम मुझे कैद ज़रूर कर देंगे और मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई हुक्म सादिर करेंगे। हज़रत अली, मेरी और तुम्हारी जो कराबत है तुमने उसे क्यों नज़रअंदाज कर दिया? तुम पर जो शख्स भी हमला करेगा वो दरअसल मुझ पर हमला करेगा। इब्न अब्बास, आप माविया को ख़त तहरीर कीजिए, इसके साथ उनसे कुछ वादे कीजिए और इन पर एहसानात कीजिए। हज़रत अली, खुदा की कसम मैं ये काम हरगिज़ नहीं कर सकता। जब 36 हिजरी शुरू हुई तो हज़रत अली ने मुख्तलिफ़ शहरों पर गवर्नर मुतय्यन करके रवाना फरमाए। उस्मान बिन हनीफ़ को बसरा, अमारा बिन शहाब को कूफ़ा रवाना किया। ये अमारा महाजरीन सहाबा में दाखिल थे।
यमन उबैदुल्ला बिन अब्बास को, और मिस्र कैस बिन साद को, और शाम सहल बिन हनीफ को। सहल मदीना से रवाना होकर शाम की तरफ चले। जब तबूक पहुँचे तो वहाँ उन्हें कुछ सवार मिले। इन सवारों ने दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? सहल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैं अमीर होकर आया हूँ। सवारों ने दरियाफ्त किया, आपको किस इलाके पर मुकर्रर किया गया है? सहल ने जवाब दिया, शाम पर। उन्होंने जवाब दिया कि अगर तुम्हें हज़रत उस्मान ने भेजा है तो सर आंखों पर, और अगर किसी और ने भेजा है तो वापस जाओ। सहल ने कहा, क्या तुम्हें वो हालात मालूम नहीं जो पेश आ चुके हैं? इन सवारों ने जवाब दिया, हाँ, हमें सब कुछ मालूम है। इस गुफ्तगू के बाद सहल रज़ी अल्लाह अन्हु वो हज़रत अली के पास वापस चले आए। कैस बिन साद जब मदीना से निकल कर ऐला पहुँचे तो इन्हें राह में कुछ सवार मिले। उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? कैस ने जवाब दिया, मैं हज़रत उस्मान का कासिद हूँ। उन्होंने दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम कैस बिन साद है। इन सवालों ने जवाब दिया, अच्छा, तुम आगे जा सकते हो। ये आगे बढ़कर मिस्र में दाखिल हो गए। मिस्र में इनके दाखिले से लोगों में कई फ़िरके बन गए। एक ग्रोह तो कैस बिन साद के साथ मिल गया और बैत में दाखिल हो गया। दूसरे ग्रोह ने खरबता पहुँच कर पनाह ली। उसने हर किस्म के इख्तलाफात से अलहदगी इख्तियार कर ली और ये पैगाम भेजा कि अगर हज़रत उस्मान के कातिल कत्ल कर दिए गए तो हम तुम्हारे साथ हैं, वरना हम तुम्हारे मुखालिफ हैं। या तो हम अपना किसास लेकर रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा ग्रोह ये कहता था कि हम अली के साथ हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि हमारे भाइयों से किसास न लिया जाए। ये लोग भी हज़रत अली की जमात में शामिल थे। कैस बिन साद ने ये तमाम हालात हज़रत अली को लिख कर रवाना किए। उस्मान बिन हनीफ बसरा रवाना हुए। उन्हें बसरे में दाखिल होने से किसी ने नहीं रोका। इब्ने आमिर जो वहाँ हज़रत उस्मान की जानिब से आमिल था, उसमें ना तो हिज़्म एहतियात का मादा था और ना इस्तक़लाल के साथ जंग कर सकता था, और तदब्बुर भी उसमें ना पाया जाता था। यहाँ भी लोग 3 जमातों में तकसीम हो गए। एक जमात तो हज़रत अली की मुखालिफ थी और दूसरी जमात ने हज़रत अली की खिलाफत कबूल की। तीसरी जमात ये कहती थी कि इस वक्त तक कोई फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक हमें अहले मदीना का तर्ज़ अमल मालूम ना हो जाए। जो तरीक़ा अहले मदीना इख्तियार करेंगे, हम भी वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे। अमार मदीने से चल कर ज़बाल्ला पहुँचे तो राह में इन्हें तलीहा बिन ख़ुवैलद मिला। इत्फाक़ से इसी वक्त हज़रत उस्मान की शहादत की खबर कूफ़ा पहुँची थी और तलीहा हज़रत उस्मान के खून का बदला लेने के लिए निकला था और कहता जाता था, अफसोस मैं इस वक्त वहाँ ना था, काश मैं उनकी शहादत से कबल पहुँच जाता। काश मैं इस वक्त जवान होता तो कौमों को जलील करके दिखा देता। ये तलीहा कूफ़ा से इस वक्त चला जब काका ने हज़रत उस्मान की इमदाद का ऐलान किया। ये उन लोगों में शामिल था जो हज़रत उस्मान की मदद के लिए तैयार हुए थे। रास्ते में जाते जाते अम्मारा मिल गए। तलीहा ने इनसे कहा, तुम वापस जाओ, क्योंकि अहले कूफ़ा अपना अमीर तब्दील करना नहीं चाहते, और अगर तुम वापस ना जाओगे तो मैं तुम्हारी गर्दन उतार लूँगा। अमारा वापस हुए। जब ये वापस आने लगे तो तलीहा ने इनसे कहा, तू ख़तरा से बचता रह ताकि बुराई तुझे ना घेर ले, क्योंकि ख़तरात से बचना लोगों की शरारतों से बेहतर है। तलीहा की ये बात अम्मारा के दिल में ऐसी बैठी कि मरते दम तक वो इसी पर कायम रहे और ज़िंदगी के तमाम कामों का इसी के मुताबिक फ़ैसला करते रहे। उबैदुल्ला बिन अब्बास यमन पहुँचे तो याला बिन उमैया यमन से तमाम मालो दौलत लेकर अपने हामियों के पास मक्का चले आए। जब सहल बिन हनीफ शाम से वापस आए और हज़रत अली को हालात मालूम हुए और दूसरे गवर्नर भी वापस आ गए तो हज़रत अली ने तलहा और ज़ुबैर को बुलाया और फरमाया, ऐ लोगों, जिस बात से मैं तुम्हें डराता था आज वो पेश आ चुकी और हालात ऐसे अब पेश आ गए हैं कि इनको ख़त्म किए बगैर कोई चारा कार नहीं। ये आग की तरह एक फ़ितना है कि जब आग एक बार लग जाती है तो बढ़ती और भड़कती चली जाती है। हज़रत तला और ज़ुबैर ने अर्ज़ किया, तो आप हमें मदीना से बाहर जाने की इजाज़त दीजिए ताकि हम इसकी कोई तदबीर करें, वरना आप हमें छोड़ दें। हज़रत अली ने फरमाया, मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं इन हालात को संभालने की कोशिश करेंगे, और जब कोई भी तदबीर बाकी ना रहेगी तो आखिरी दाग लगाना ही होती है। इंसान तकलीफ़ से निजात पाने के लिए अपने जिस्म को जलवाना भी गवारा कर लेता है। इसके बाद हज़रत अली ने अमीर मुआविया और अबू मूसा अशरी को बैत के लिए ख़त लिखे। अबू मूसा ने कूफ़ा की इताअत और बैत के बारे में तहरीर किया कि वो सब आपके फर्माबरदार हैं, और इनमें से कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बैत की है और कुछ आपकी बैत पर राज़ी हैं। जब तक हज़रत अली कूफ़ा तशरीफ़ नहीं ले गए, इस वक्त तक कूफ़ा की यही हालत रही। हज़रत अली ने हज़रत अबू मूसा अशरी के पास माबदुल सलमी को कासिद बनाकर भेजा।
हज़रत अली ने अमीर माविया के पास सबरातुल जहनी को कासिद बनाकर रवाना किया। ये इनके पास पहुँचे और हज़रत अली का ख़त दिया, लेकिन अमीर माविया इस ख़त का कोई जवाब नहीं देते थे और कई रोज़ बाद कासिद को रवाना कर दिया। कासिद जब जवाब लिखने के लिए कहता तो अमीर माविया कोई जवाब न देते, बल्कि ये अशार पढ़ने लगते। किला की तरह जमे रहो, या फिर मुझे एक ख़तरनाक जंग की दावत जो जवान और बच्चे को बूढ़ा बना दे। तुम्हारे पड़ोसियों और लड़कों की ऐसी खूनरेज़ी होगी कि कनपटी और सर के बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। आका और ग़ुलाम दोनों आजिज़ हो जाएंगे और हमारे अलावा कोई वाली और हाकिम न होगा। गर्ज़ जब भी सबरातुल जहनी ख़त पढ़कर सुनाते या जवाब का तकाजा करते तो अमीर माविया यही अशार पढ़ते। जब हज़रत उस्मान की शहादत का तीसरा महीना शुरू हुआ, यानी सफ़र का महीना, तो अमीर माविया ने बनु अब्स के एक शख्स को बुलाया और बनु रवाहा के एक आदमी को भी तलब किया जिसका नाम कबीसा था, और इसे एक रजिस्टर सुपुर्द किया जिसका उन्वान ये था: माविया की जानिब से अली को जवाब। इस पर मोहर लगी हुई थी। कबीसा को ये रजिस्टर सुपुर्द करके अमीर माविया ने हुक्म दिया कि जब तुम मदीना पहुँचो तो नीचे का कागज़ खोल लेना। फिर उसे कुछ बातें समझाई कि मदीना पहुंचकर लोगों से ऐसा और ऐसा कहना। हज़रत अली का कासिद भी वापस हुआ और अमीर माविया का कासिद भी मदीने को चले। जब अमीर माविया के कासिद मदीने पहुंचे तो ईसा ने इस तरह कागजात खोल लिए जिस तरह अमीर माविया ने हुक्म दिया था। लोगों ने इनके कागजात को देखना शुरू किया और इसे देखकर अपने अपने घरों को जाने लगे, और सबको मालूम हो गया कि अमीर माविया इस खिलाफत पर मोतरिज़ हैं। कासिद इसी तरह आगे बढ़ता हुआ हज़रत अली के पास पहुंचा और वो कागजात का पलिंदा इन्हें दे दिया। उन्होंने मोहर तोड़ी तो इसमें कुछ तहरीर न था। हज़रत अली ने दरियाफ्त किया, तुम अपने पीछे क्या हालात छोड़ आए हो? कासिद, क्या मुझे अमान देते हैं? हज़रत अली, हाँ, कासिद को अमान हासिल होती है, इन्हें कत्ल नहीं किया जाता। मैं अपने पीछे ऐसी कौम छोड़ कर आया हूँ जो कसास के अलावा किसी बात पर राज़ी नहीं होगी। हज़रत अली, आखिर वो किससे कसास चाहते हैं? कासिद, आपसे। मैं 70,000 बूढ़ों को उस्मान के लिबास के नीचे रोता छोड़ कर आया हूँ जो उन्होंने दमिश्क की जामे मस्जिद के मिंबर पर चढ़ा दिया है। हज़रत अली, तुम मुझसे उस्मान के खून का बदला तलब कर रहे हो। ए अल्लाह, मैं उस्मान के खून से आपके सामने अपनी बरात का इजहार करता हूँ। अब खुदा की कसम कातलीन उस्मान बच जाएंगे, लेकिन ये दूसरी बात है कि किसी की मौत आ गई हो, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी के साथ बुराई का इरादा फरमाते हैं तो उसे ज़रूर पहुँच कर रहती है। अब तुम जा सकते हो। कासिद, क्या मेरे लिए अमान है? हज़रत अली, हाँ, तुम्हारे लिए अमान है। जब ये अबसी बाहर निकला तो सबाई चिल्लाए कि ये कुत्ता है और कुत्तों का कासिद है। अबसी भी चिल्लाने लगा, ए आले मिस्र, मुझे बचाओ। ए कैस की औलाद जो घोड़ों और ऊँटों के मालिक हैं, मुझे आकर बचाओ। मैं अल्लाह जल्ला इस्मों की कसम खाकर कहता हूँ कि अनकरीब 4,000 जवान तुम पर हमला आवर होने वाले हैं। तुम खुद सोच लो कि तुम में कितने शाह सवार हैं और कितने ऊँट सवार हैं। तुम उस लश्कर के मुकाबले के लिए कितनी तैयारी कर चुके हो? मिस्रियों ने उसे रोका और कहा कि खामोश रह। ये बोला, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम, ये जमात हरगिज़ भी फलाह नहीं पा सकती, क्योंकि अब इन पर वो अजाब नाजिल हो चुका जिसकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इनसे वादा किया गया है। मिस्री फिर बोले, खामोश रह। अबसी बोला, जिस अजाब से इन्हें डराया गया था आज वो इनके लिए हलाल हो चुका है, और खुदा की कसम उनके अमाल ख़त्म हो चुके हैं और उनकी हवा उखड़ चुकी है, और खुदा की कसम अभी शाम न होने पाएगी कि ये सब जलील और रुस्वा हो जाएंगे। सरी ने शोएब और सैफ़ के हवाले से मेरे पास ये लिख कर रवाना किया कि मोहम्मद बिन अमर अल-वाक़दी और तलहा का बयान है कि हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर ने हज़रत अली से उम्रे की इजाज़त तलब की। हज़रत अली ने इन्हें इजाज़त दे दी और ये दोनों मक्का रवाना हो गए। अहले मदीना ये मालूम करना चाहते थे कि अली माविया के साथ क्या तरीका इख्तियार करते हैं, और बिलखसूस इस वक्त जब माविया इनकी बैत ना करें, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि अली अहले किबला के साथ जंग व जदल को जायज़ समझते हैं या नहीं, और हम ये फ़ैसला कर सके कि मुसलमानों के साथ किताल किया जाए या नहीं। अहले मदीना को ये मालूम हो चुका था कि हज़रत हसन अपने वालिद हज़रत अली के पास गए थे और इन्हें यह मशवरा दिया था कि आप अपनी जगह खामोश बैठ जाएं और लोगों को इनके हालात पर छोड़ दें। अहले मदीना ने ज़ियाद बिन हंज़ला अल तमीमी को हज़रत अली के पास रवाना किया। ज़ियाद हज़रत अली के हामियों में दाखिल थे। वो हज़रत अली के पास गए और कुछ देर वहाँ जाकर बैठे। हज़रत अली ने खुद ही इनसे फरमाया, ए ज़ियाद, तैयारी कर लो। ज़ियाद, किस शय की तैयारी? हज़रत अली, शाम के जिहाद की। ज़ियाद,
نرمی اور احسان بہتر شے ہے۔ اس کے بعد زیاد نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: اور جو شخص بہت سے کم نہ کر سکے، اسے یا تو نوکدار دانتوں سے چبا لیا جائے یا کھروں سے رون دیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے جواب میں یہ شعر پڑھا، گویا کہ وہ خاموش بیٹھنے پر تیار نہیں۔ ترجمہ: جب تو عقل مند تلوار اور مددگار جمع کر لے تو تجھ سے ظالم بھی دور بھاگیں گے۔ یہ جواب سن کر زیاد باہر آئے اور لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا فیصلہ ہے؟ زیاد نے جواب دیا کہ تلوار ہے۔ تم خود اس سے سمجھ لو کہ علی کیا کرنا چاہتے ہیں۔